Compound interest, it is paid on original principal as well as the interest earned. So amount of interest is never constant in case of compound interest. So interest amount keeps on changing every year. We earn comparatively more interest than in simple interest system. Here the interest earned is again reinvested. That is why you keep on getting interest on interest. In compound interest, the more number of times you compound, that is the more number of times you give the interest on the principal, more interest you keep on earning. More number of times we compound, more interest we earn. This is called as compounding effect. This compounding effect is also called as the eighth wonder of the world. The more and more you compound, the more and more interest you get. In compound interest, we may compound it once a year, that is yearly. We may compound it quarterly, half yearly, monthly, anything. आप जितनी ज्यादा बार कंपाउंड करते हो उतनी ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता जाता है. To prove this fact, let us take an example. Let us say that 10,000 is invested at 12%, and now first we will compound it yearly. Compounding it yearly मतलब साल में एक ही बार इंटरेस्ट देना है. तो 10,000 पे 12% का इंटरेस्ट आएगा साल में एक ही बार 1200. अब हम लोग करेंगे 2 बार, दैट इज हाफ ईयरली. तो 10,000 पे 12% का 6 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा 600. अब क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 10,600 पे 12% का वापस 6 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा. This will be 636. ये कैसे आया? 10,000 पे 6 महीने का तो 600 आया और ये 600 पे 6 महीने का 36 आया. तो आपका टोटल इंटरेस्ट आया 1236, which is more than compounding it yearly. कंपाउंड का मतलब क्या है? इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता रहेगा. तो पहले 10,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट 600 आया, फिर आपको 10,600 पे इंटरेस्ट मिलने वाला है. Now suppose I am doing it for quarterly. That is 10,000 पे 12% का इंटरेस्ट. अभी 4 क्वार्टर्स होते हैं हमारे पास, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो 3/12. तो पहले क्वार्टर में तो 300 रुपए का इंटरेस्ट आ गया. अब दूसरे क्वार्टर में 10,300 पे इंटरेस्ट लगेगा 12% का. अब तीसरे क्वार्टर में 10,300 प्लस 309, 10,300 plus 309. So that is 10,609 into 12%. That will be 318.
क्योंकि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगने वाला है ना. And now you will add this amount 10,609 plus 318. 10,609 plus 318.27. ऐसे टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी 10,927.27. 10,927.27 उस पे लास्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट एट 12%. That will be 327.81. Now, if you add all this 300 plus 300 plus 300 plus 300, this is 1200 plus 9 plus 18.27 plus 27.81. आपका टोटल इंटरेस्ट आ गया 1255 पॉइंट समथिंग 08. अगर आपने साल में एक ही बार इंटरेस्ट दिया होता तो आपको सिर्फ 1200 रुपए मिलते. आपने जब साल में 2 बार दिया तो आपको 1236 मिले, और जब आपने साल में 4 बार दिया तो आपको 1255 मिला. ऐसे ही अगर आप मंथली दोगे तो यू विल गेट मोर इंटरेस्ट. This is the effect of compounding. The more number of times you give interest on the same amount at same rate of interest, more interest you get. वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है compound interest is equals to P into 1 plus I bracket raised to n minus 1. A is P into 1 plus I bracket raised to n. This is the formula for compound interest, where P is principal, I is R upon 100, n is number of, I'll say number of compounding periods. A is amount. P is principal. This is your compound interest. Now we'll take the examples to solve, to know how to solve these sums. ये कंपाउंडिंग को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंपाउंडिंग के ऊपर ही बहुत, मैं तो बोलूंगी बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस पे डेवलप हुई है. इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री जो अभी इतनी बढ़ गई है ना, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस कंपाउंडिंग इफेक्ट. So let us see. Calculate amount of principal 8,000 at 15% for 3 years. Principal 8,000 invested at 15% for 3 years. Now the formula for amount is P into 1 plus I bracket raised to n. तो इधर P तो है 8,000, R is 15%, so I is 15 upon 100, that is 0.15. N is 3 years. We'll put here. A is equals to 8,000, 1.15 bracket raised to 3. Now take your calces.
raised to 3 multiplied by principal is 8,000. The amount is 12,167. आप जब कैलसी पे कर रहे हो तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए. पहले रेज टू 3 करो, देन मल्टीप्लाई बाय 10,000. नाउ इफ आई वांट इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर चाहिए तो 12,167 minus 8,000. This is your compound interest. Let us take one more. What will be compound interest on 3,000 for 3 years at 12%? Compounded annually. ये कंपाउंडेड एनुअली का मतलब ये है कि आपने बस साल में एक ही बार कंपाउंड किया है, एक ही बार इंटरेस्ट दिया आपने. Now you want compound interest. So formula for compound interest is P into 1 plus I bracket raised to n minus 1. P is 3,000. See, 12%, 12 upon 100 will become 0.12. 1 plus 0.12 becomes 1.12. तो मैं डायरेक्टली लिखूंगी इधर. ब्रैकेट रेज टू 3 minus 1. अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा 1.12 ब्रैकेट रेज टू 3 निकालो, -1 into 3,000. 1.12 ब्रैकेट रेज टू 3, तो ये 2 3 -1 multiply by 3,000. Your interest is 1214.78. आप ऐसे भी निकाल सकते हो. You can find out the amount and then subtract the principal from that. That is also easy to find the compound interest. ये तो basic sums हो गए. Now we'll do some more advanced sums into this. कि अगर half yearly compound होता है, quarterly होता है, तो उसको convert कैसे करना है, कैसे हम लोग उसको solve करेंगे, that we'll see now. What will be the amount of 20,000 for 4 year at 15% compounded half yearly? तो अगर मुझे ऐसा कुछ सम दिया है और ये हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, तो मैं अगर ऐसा करूंगी, अभी 4 साल हाफ ईयरली तो 8 कंपाउंडिंग हो जाएंगे, और मैं अगर हर बार ये करूंगी, अब 20,000 into 15%, तो पहले हाफ ईयर में 1,500 हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम आप 1,500 रुपए को ऐड करोगे, तो आप 21,500 पे इंटरेस्ट निकालोगे. देन वॉट एवर इज द इंटरेस्ट दैट यू विल अगेन ऐड. ऐसे आप अगर 8 बार करोगे तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा. तो विल डिराइव एन फॉर्मूला फॉर दिस. Some direct formulas are given and there is something called as conversion. Conversion is the most popular method क्योंकि ये हमको अब आगे चल के एन्युटी में भी यूज होने वाला है. तो ये कैसे किया जाता है कन्वर्जन? ये ऐसे होता है. अगर 12 महीने के लिए 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, तो 6 महीने के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? तो 15 into 6 upon 12. That is 7.5%. तो I क्या होगा? 7.5 upon 100. That is 0.5
0.75. This will be your I. Now let us talk. This is the converted I. Now let us talk about N. N is actually 4 years. लेकिन एक साल में 2 हाफ ईयर आते हैं, तो 4 साल में कितने आएंगे? 8 हाफ ईयर्स आएंगे. तो N हो जाएगा 8. Okay. Now amount is P into 1 plus I bracket raised to N. That is 20,000. 1 plus I, that is 1 plus 0.075. So it will become 1.075 bracket raised to 8. So it will be 1.075 bracket raised to 8. So this is 2 raised to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Multiplied by 20,000. 35,669.5. This is your amount after charging interest of 15% for half year. 35,665. ये मैं सिंपली ऐसे कर सकती हूँ, नहीं तो क्या होगा, मुझे 8 बार वो करते रहना पड़ेगा. और अगर कभी कभी वो सब चीजें बहुत ज्यादा हो गई तो 12 साल है, क्वार्टरली है, तो 12 साल में कितने क्वार्टर्स आएंगे? 48 क्वार्टर्स. तो मैं 48 टाइम्स करूंगी वो? दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग. तो व्हाट विल डू इज विल कन्वर्ट एवरीथिंग. अगर इसी को उन्होंने ऐसे बोला है कि आप इसको क्वार्टरली करो, तो लेट अस सी. अगर इसी को उन्होंने क्वार्टरली बोला तो क्या करना है? If you do this quarterly, then let us see. तो क्वार्टर मतलब कितने? 3 महीने होते हैं. तो 12 महीने के लिए अगर 15% है, तो 3 महीने के लिए कितने परसेंट होंगे? This will be 15 into 3 upon 12. Which is 3.75%. तो R आपका हो गया है 3.75. तो I हो जाएगा 3.75 upon 100. That is 0.0375. N. एक साल में 4 क्वार्टर्स होते, तो 4 साल में कितने क्वार्टर्स होंगे? 16 क्वार्टर्स होंगे. तो अब हम लोग N क्या हो गया हम लोगों का? 16. नाउ A is equals to P into 1 plus I bracket raised to N. That is 20,000. 1.0375 bracket raised to N is 16. Now you can find out. तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Multiplied by 20,000. 34,741.74. मैम आपने 15 बार किया है, 16 बार करनी है. सॉरी, मैंने 15 बार किया, इसलिए मेरा अमाउंट कम आ गया. क्योंकि अगर मैंने 16 बार किया होता बराबर, तो मेरा अमाउंट ज्यादा आना चाहिए था 35,000 से. 0.375. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Multiplied by 20,000.
Yes, 36,044. Point whatever, 0.5. तो जब हम लोगों ने हाफ ईयरली दिया था तो 35,669 आया था. अब क्वार्टरली दिया है तो 36, थोड़ा ज्यादा आ गया. ज्यादा ही आना चाहिए, अगर ज्यादा नहीं आता तो रॉन्ग है. गेटिंग दिस. अभी यही अगर मंथली करना है तो हम लोगों को यही कन्वर्जन करने पड़ेंगे. इफ आई हैव टू डू दिस मंथली, सपोज आई एम डूइंग दिस मंथली. और उन्होंने बोला है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ 20,000 फॉर 4 years एट 15% कंपाउंडेड. मैं बोलूंगी मंथली. तो ये कैसे आएगा? 12 महीने का 15%, तो एक महीने का कितना? 15/12. 1.25. 1.25%. पॉइंट के बाद हमेशा नंबर्स बोलने हैं. 25 प्लेस वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद. R is 1.25, then I will be 1.25 upon 100. 0.0125. So 1 plus I will be 1 plus 0.0125. That is 1.0125. Now N. एक साल में 12 महीने होते तो 4 साल में कितने महीने हो जाएंगे? 48. So your amount will be 20,000. 1.0125 raised to 48. And now you will find out that will be more than 36,000. ये ज्यादा बार कंपाउंड होगा तो इसकी वैल्यू भी ज्यादा आएगी 36,000. So your total is 36,307 point something. 09. 0.09. तो ये हो गया है आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट. दिस इज हाउ वी कंपाउंड द थिंग्स. कंपाउंड करना है मतलब ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पे करना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम तक उसको इंटरेस्ट पे करना है. तो बहुत सारे फॉर्मूलेज है. कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में उन्होंने हर कंपाउंड के लिए अलग फॉर्मूला दिया है. बट इट इज मोर इजी टू रिमेम्बर द कन्वर्जन मेथड देन टू रिमेम्बर द कंपाउंडिंग मेथड. अब कहीं कहीं पे उन्होंने फॉर्मूला ऐसा दिया है कि अगर इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंडेड होगा तो एक तो आप ये ऐसे कन्वर्जन करो जो हम लोगों ने अभी सीखे, या फिर आप इस तरह से वो फॉर्मूले यूज करो. 1 plus I bracket raised to n. This is when compounded yearly. Or it is A plus P (1 plus I by 2 bracket raised to 2n) when it is compounded half yearly. Or it is A 1 plus I by 4 bracket raised to 4n when it is quarterly. Monthly होगा तो 12 multiplied by 12n. ऐसे होता रहेगा. तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस कन्वर्जन याद रखने की जरूरत है कि अगर हाफ ईयरली है तो फिर इंटरेस्ट क्या आएगा और एन क्या आएगा. उतना भी याद रहे तो आपको ये कंपाउंडिंग आ जाएगा. एंड व्हाई आई एम स्ट्रेचिंग मोर ऑन कन्वर्जन, मतलब इंटरेस्ट के रेट को और टाइम को कन्वर्ट करने का,
क्योंकि जब हम लोग एन्युटी करेंगे तो उसमें हमारे पास ये फॉर्मूलेज नहीं है इस तरह के, वहां पे हमको कन्वर्जन ही करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन।